کمالیہ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے غیر قانونی LPG سلنڈر پر چلنے والی اور فٹنس نہ رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسد راجپوت رپورٹ کریں گے۔ DPO ٹوبا ٹیکسنگ اور DSP ٹریفک پولیس کی ہدایت پر ٹریفک پولیس کا ضلع بھر میں غیر قانونی LPG سلنڈر استعمال کرنے، دھواں چھوڑنے اور اوور لوڈنگ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلہ میں کمالیہ ٹریفک پولیس روزانہ کی بنیاد پر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی ہے تاکہ مسافر گاڑیوں میں آگ لگنے اور حادثات جیسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر ٹریفک وارڈن احمد کریم کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری نہ کرنے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ یہ جو غیر معیاری سلنڈر ہیں ان کے خلاف ہم 285-86 کی کارروائی کر رہے ہیں، یہ ایک FIR بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلیک پیپر والی گاڑیاں ہیں اس کا بھی حکم ملا ہوا ہے، ان کو بھی ریموو کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہم کر رہے ہیں۔ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں شیئر منٹری ڈالتے ہیں ان کا 14 نمبر کوڈ میں چلان کرتے ہیں 750 روپیہ، تاکہ وہ اپنی گاڑیوں کو فٹنس صحیح کروائیں اور گاڑی کا کام کروائیں تاکہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں۔ ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ موجود نہیں اور زہریلا دھواں چھوڑ رہی ہیں یا کالے شیشے لگائے ہوئے ہیں، انہیں بھاری جرمانوں کے ساتھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کا مقصد شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کی آگاہی کے لیے اسکول کالج میں ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی سیمینار بھی منعقد کیے جا رہے ہیں جس میں شہریوں کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اسد راجپوت، سچ نیوز TV، کمالیہ۔ کراچی میں ثانوی بورڈ کے تحت ہونے والے امتحانات جاری ہیں لیکن امتحانی مراکز میں مسائل کے انبار ہیں۔ اسکول میں وسائل کی کمی کے باعث طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید آگاہ کر رہی ہیں نمائندہ سچ نیوز کرن فاطمہ۔ جی کرن۔ جی بالکل، دیکھیں میٹرک بورڈ کے تحت ہونے والے تمام امتحانات جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری ہے اور مسلسل جو امتحانات ہیں وہ 2 شفٹوں میں لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں ایک اسکول میں موجود ہوں، یہاں پر ایگزامز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پر ایگزام جو طلبہ جو ہیں وہ کس ماحول میں دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین شہروز آپ کو دکھائے تو یہاں پر جو ہے وہ دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بجلی بتایا جا رہا ہے کہ بجلی جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پنکھے بھی یہاں سے اتار کے لے گئے ہیں اور بلب وغیرہ بھی جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑے ہیں۔ یہاں کے جو مینجمنٹ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ جو ہے وہ ہم نے اس بات کی شکایات درج کروائی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ماحول میں بچے جو ہے وہ ایگزامز دے رہے ہیں تو کس طرح سے ایگزامز دیے جائیں۔ حکومت سے جو ہے وہ یہ التجا کی جاتی ہے کہ ان اسکولز پر دھیان دیا جائے اور میٹرک کے جو امتحانات جاری ہیں بچوں کے لیے اس کو۔ بہت شکریہ کرن فاطمہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نرسز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے DHQ اسپتال میں ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے مدثر بخاری وہاں موجود ہیں۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا۔ اس دن کو منانے کا مقصد جو ہے نرسنگ کے پیشے سے وابستہ افراد کو آج خراج تحسین پیش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ان کی خدمات کو سراہنا بھی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں DHQ ہسپتال میں جہاں پہ نرسنگ کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، کیک بھی کاٹا گیا اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ شگفتہ بٹ صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ نرسنگ کے عالمی دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور نرسنگ کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر رہی ہے۔ جی میڈم بتائیے۔ جی آج ہم نرسز ڈے منا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ فلورنس نائٹنگیل کی برتھ ڈے آج، تو جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو باقی مسائل کے حوالے سے جو سب سے زیادہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ پورے پاکستان میں نرسز کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نرسز کا سروس سٹرکچر ابھی تک نہیں بنا۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نرسز کی جو ہیڈ ہے ان کا کہنا تھا کہ سروس سٹرکچر کو جو ہے وہ نرسز کو بہتر بنایا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ جو بیک بون ہے ہمارے ہسپتالوں کی نرسز، ان کے جو سروس سٹرکچر ہے اس کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق جو کیا جائے۔ جی بہت شکریہ مدثر، وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں کی طرح ضلع کوہاٹ میں آٹے کے بحران نے سر اٹھا لیا۔ عام مارکیٹ سے آٹا غائب ہو گیا، ڈیلر بلیک میں آٹا فروخت کرنے لگے ہیں۔ کے دیگر شہروں کی طرح ضلع کوہاٹ میں آٹے کے بحران نے سر اٹھا لیا۔ شہری آٹے کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ سستا آٹا نایاب جبکہ مہنگا مزید مہنگا ہو چکا ہے۔ عام مارکیٹ سے آٹا غائب جبکہ آٹا ڈیلر بلیک میں فروخت کر کے منہ مانگے رقم وصول کرنے لگے۔ مل مالکان کی چاندی ہو گئے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 3500 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے، تو دوسری جانب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آٹا لے جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کی وجہ سے صبح کے پیکے میں آٹے کا بحران سنگین ہو گیا۔ آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ ہم یہاں پر 4 دن مزدوری کرتے ہیں، پھر 1 دن بوری لیتے ہیں۔ ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ مہنگائی تھوڑی سی
कम कर दे। बिलाशुबा मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद होने के बावजूद KPK में आटा नायाब होना एक सवालिया निशान है। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि आटा बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सवात में आटे का रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 20 किलो का थैला 3400 से तजावुज कर गया। आटा डीलर्स और अवाम ने एहतजाज किया, दुकानें बंद। अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। वकार सवाती रिपोर्ट करेंगे। शिद्दत एहतियार कर गया। मार्केट में 20 किलो आटे का तेला 3400 रुपए तक पहुंच गया, जिससे आम आवाम और आटा डीलर शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। 500 रुपए 600 रुपए हमारा दिहाड़ी है, एक महीने पे हम एक आटा है, ये सिर्फ आटा है, हम और कोई चीज नहीं है, गई नहीं है और भी नहीं है, सब चीजें आसमान से बातें कर रहे हैं, सब चीजों का रेट है। जिला स्वात भर में पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ आटा डीलर्स ने एहतजाजन दुकानें बंद कर दी, जबकि निशात चौक मिंगौरा में एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। 2300 रुपए का आटा उसको 3400-3500 पे मिल रहा है और वो भी न होने के बराबर है। अगर एक हफ्ते में हमारा पंजाब से आटे की पाबंदी ख़त्म नहीं की गई तो हम आटक पे जाएंगे और उधर आटक पुल बंद करेंगे और उधर अपने मुतालिबात तस्लीम करके फिर वापस आएंगे। एहतजाजी मुजाहिरे से सदर ट्रेड फेडरेशन अब्दुर्रहीम, सदर आजी करीम और जनरल सेक्रेटरी आजी उस्मान ने भी खिताब किया, जबकि अवाम की बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक थे। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच TV स्वात। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में चीनी नायाब हो गई। चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई है। चीनी की किल्लत पर अंजुमन ताजरान और चीनी डीलर्स एहतजाज किया। बैनुल ज़लाई पाबंदी के बाद शहर में चीनी की मसनू किल्लत और बहरान पैदा हो गया। चीनी की तरसील पर पाबंदी की वजह से चीनी डीलर्स, इनके कारोबार भी शदीद मुतासर हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि चीनी की तरसील पर पाबंदी ख़त्म की जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। दायरा दीन पनाह में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान को छूने लगी है। गरीब आवाम के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद बता रहे हैं इस मुतालिक आरिफ बलोच। जी आरिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। पंजाब भर की तरह दायरा दीन पनाह में भी जो महंगाई का तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ अगर मुर्गी के गोश्त की कीमतों की बात की जाए तो दायरा दीन पनाह की मार्केट में मुर्गी 580 से 600 रुपए फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपने मन माने से जो ना मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी के हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। आप हमें ये बताएँ, मुर्गी का गोश्त बढ़ने की वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुर्गी का गोश्त गिनड़ा से 600 रुपए किलो है। खाली हाथ वाले मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी नहीं गिन सकता। मुर्गी को अलावा रवा 600 रुपए किलो है, दाल 500 रुपए किलो है। गरीब आदमी क्या खावे? असा मुतालबा करें हुकूमत को कि महंगाई को कम किया वजे ताकि गरीब आदमी कैसे गिन के खा सके। हाँ जी, बिल्कुल शहरियों का कहना है कि मुर्गी के गोश्त बढ़ने की वजह से हमें जो है शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। शहरियों ने वज़ीर पंजाब से फौरी तौर पर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। बहुत शुक्रिया आरिफ बलोच। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। जलालपुर पीरवाला में भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मुतालिक बात कर लेते हैं सादुल्ला मदनी से। जी साद। बिल्कुल, महंगाई ने गरीब का जीना महाल कर दिया है। हर तबका फ़िक्र के साथ साथ गरीब तबका भी जो कि परेशान दिखाई देता है। मेरे साथ एक मज़दूर मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। भट्टे पर मौजूद है, कैसे मजदूरी करते हैं, क्या घर का किचन चल सकता है या नहीं? 6 बजे आसान दे से तू कर काम दे भट्टे ते काम करने से जरता 700 रुपया निहार देने जरता असा इन सारा गुजारा नहीं चलता। निके निके बाल हैं, 2 बाल हैं, असा इन गुजारा क्यों करूँ? 4000 रुपया जरता मान दाने 400 रुपये किलो घी है। सरकारी अस्पताल में तो दवाई नहीं मिलती तो बाल फीस असा क्यों भरूँ? जी, इनका कहना है कि आज के रोज़ में रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों को पालना भी मुश्किल हो गया है और इस दौर में करें तो क्या करें। जी बहुत शुक्रिया साद। गरीब और मुतवसत तबके का AC कहलाने वाला रूम एयर कूलर भी अब महंगा हो गया है। हालिया दिनों में रूम एयर कूलर की कीमतों में भी इजाफा हुआ। मजीद जानते हैं जहलम से बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। गरीब और मुतवसत तबके का AC कहलाने वाला रूम एयर कूलर भी अब महंगा हो गया है। खाम माल पे लगने वाले मुख्तलिफ टैक्सेस की वजह से रूम एयर कूलर की तमाम प्रोडक्ट ही महंगी हो गई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्सेस ऐसे लगाए गए हैं जिसकी वजह से एयर कूलर की कीमतों में 2 से 4 हज़ार रुपये इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत।
जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कस्टमर ना होने के बराबर है मार्केट में। हम लोगों के काम पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रहा है। कूलर बहुत महंगे हो गए हैं, हर चीज़ जो महंगी हो गई है। तो मैं अपने IT के हिसाब से आया था कि तकरीबन इतने का होगा, लेकिन जब इधर पहुंचा हूं तो अपनी रेंज से भी बाहर हो गया। दर्जा हरारत में इजाफा होते ही रूम एयर कूलर की मांग में इजाफा होता है, मगर हालिया महंगाई की लहर ने इसे भी आम सार्फ की पहुंच से दूर कर दिया है। बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से लोग जो हैं वो एयर कूलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कूलरों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ख़रीदार भी परेशान है और इसको बनाने वाले मैन्युफैक्चरर भी परेशान है। वो यही मुतालबा हुकूमत से कर रहे हैं कि इसके टैक्सेस में कमी की जाए और ये गरीबों का AC कहलाने वाला एयर कूलर उनकी पहुंच में हो। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दुनिया भर की तरह मुजफ्फराबाद में भी नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीउल हसन की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फराबाद में मजहब और मईशत के आपसी ताल्लुक से मुआशी मसाइल का हल तलाशने और उमूमी शऊर आगाही के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के इक्तसादी उमूर के माहिरीन और मजहबी स्कॉलर्स समेत माहिरीन फलसफा और मुहक्किकीन ने शिरकत की। यंग पॉपुलेशन को नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटीज़ में तो ये जो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आलमी कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन का कहना था कि HEC के मंजूर करदा मजमून डिवाइन इकॉनमी की हुकूमती तवज्जो और सरपरस्ती से आजाद कश्मीर के मुहक्किकीन और माहिरीन फलसफा नए राजों से पर्दा उठा सकते हैं। शुरका ने मजहबी रुझानात और माशरती बुनियादों पर मईशत को परवान चढ़ाने के लिए पॉलिसीज वज़ा किए जाने पर भी जोर दिया है। लीडरशिप को ये दावत फ़िक्र देता हूँ कि इस मौजू को अपना मौजू बनाने की कोशिश की जाए कि मईशत में, माशरत में, समाज में, सियासत में मज़हब का क्या किरदार है, रूहानियत का क्या है, अक़दार का क्या किरदार है, अखलाक का क्या किरदार है। मुजफ्फराबाद में मजहब और मईशत के आपसी ताल्लुक से मुआशी मसाइल का हल तलाशने और उमूमी शऊर आगाही के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। दादू में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वाटर सप्लाई लाइन होने के बावजूद शहरी दूर दराज सबीलों से पीने का पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। दादू में भी पीने का पानी नायाब हो गया। दूर दराज से शहरी सफर करके पीने का पानी सबीलों से भरने पर मजबूर हो गए। जब हमारे शहरियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हमें कम से कम पीने के पानी की सहूलियत फराहम की जाए ताकि हमें पीने का पानी दूर दराज से भरने में पेश आने वाली मुश्किलात खत्म हो सके। 4-5 किलोमीटर से दूर इधर जो ही मोड़ है बाईपास, उधर से पानी भरने आते हैं। मुतालबा यही है को पानी देखो, गरीब मिस्किन है, कोई पैसे भर सकता है, कोई नहीं भर सकता है। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें जल्द से जल्द पीने के साफ पानी की सहूलियत फराहम की जाए। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज़, दादू। सक्खर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अहले इलाका महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जाहिद शेख। दरियाए सिंध सखर के करीब मगर शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। शहरी साफ पानी के लिए दूर दराज इलाकों में लगे हैंडपंप से पानी भरने और खरीदने पर मजबूर है। शहरियों को पीने के लिए दरियाए सिंध से वाटर वर्क्स के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। देख सकते हैं सारा ड्रेनेज का पानी दरिया में जा रहा है। यही वाटर सप्लाई की सूरत में हमें ये पानी पिलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को देखें और सक्खर के शहरियों को साफ पानी मुहैया किया जाए। हम दूर दूर से पानी भरने के लिए आते हैं और यहाँ पानी साफ सुथरा है, लेकिन सक्खर में कहीं भी पानी का निजाम सारा धर्म भरम लगा पड़ा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है हुक्मरान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई साल गुजरने और करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सक्खर के शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। रक्षा अपना या भी मजदूरी करके घर पाले या अपना रक्षा लेकर पानी भरे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनों के लिए हम कहाँ से ले आएंगे पानी। शहर भर के ड्रेनेज का गंदा पानी मुख्तलिफ इलाकों से दरियाए सिंध में छोड़कर दरियाए सिंध के पानी को मजीद खराब करके शहरियों को बिना सफाई सुथराई के फराहमी आपका सिलसिला जारी है, जो एक लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। सक्खर के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस मामले का फिलफौर नोटिस लिया जाए और सक्खर के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सक्खर। मैकलुडगंज के सरकारी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। स्कूल की 4 दीवारें भी टूट फूट गई। रिपोर्ट करेंगे अली अहमद। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मैकलोडगंज की बिल्डिंग 20 साल कबल तामीर की गई। नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से अब ये बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। आए रोज दीवारों का मुनहदम होना मामूल बन चुका है, जिन्हें कई माह तामीर और मरम्मत ही नहीं किया जाता। टूटी दीवारों के बायस पर्दादार
तलबात और असातिज़ा को शदीद परेशानी का सामना है। मकामी अफसरान के मेन गेट पर कूड़ा करकट के ढेर और वसी और जोड़ बने हुए हैं जो कि ताफन फैला रहे हैं। बापरदा बच्चियां आंदियां ने इत्थे हायर सेकेंडरी 11वीं 12वीं दी तलबात जेड़ा पढ़न वास्ते आंदियां ने ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰ तालाब बनया एक पानी का जो खराब ते गंदा पानी जिंदे विच। अगर महकमा तालीम की जानिब से तवज्जो न दी गई और यही हाल रहा तो वालिदैन बच्चियों को कॉलेज छुड़वाने पर मजबूर हो जाएंगे। कबीरवाला में जरखेज जरी ज़मीनें गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की नज़र होने लगी। ज़ेरे काश्त रकबा कम होने से अजनास की कमी भी होने लगी है। इस मतलब हम बात कर लेते हैं, तफसीलात देखते हैं अब्दुल मजीद बाटी की इस रिपोर्ट में। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से ज़रूरी ज़मीनों पर बनाई जाने वाली रिहायशी स्कीमों ने जहां मुआशरती मसाइल को जन्म दिया है, वहीं ज़रखेज़ इलाके जहां सरसब्ज़ खेत हुआ करते थे अब उनकी जगह रिहायशी स्कीमों ने ले ली है, जिसके बायस कबीरवाला शहर और उसके गिरदोनवाह में ज़रखेज़ ज़रूरी ज़मीनों को कानूनी और गैर कानूनी मुबैना दस्तावेज़ात पर हाउसिंग सोसाइटी का जाल बिछाया जा चुका है। हमारे छोटे शहर कबीरवाला में भी ज़रूरी रकबे में कॉलोनियाँ और देहात में भी कॉलोनियाँ काटने का बहुत रुझान बढ़ गया है। अगर इन पे कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले वक्त में ग़ज़ाई किल्लत का समा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद सालों से देही ज़ेरे काश रकबा कम और शहरी आबादी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जिसके बायस वतन अजीज में अजनास की कमी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज से 5 साल कबल काश्त की गई गंदम की है, जिसकी फरोख्त के लिए किसान फूड सेंटर के चक्कर लगाया करते थे और अब की बार हर तरफ हू का आलम है और सरकारी तौर पर गंदम के मतलूबा अहदाफ पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। तो इन कॉलोनियों का ये जो मसला है, इसने हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए खुराक का जो मसला है उसका अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी हुई है, जिसकी बड़ी वजह ज़ेरे काश रकबा की कमी है। हाउसिंग सोसाइटियों की हौसला शिकनी की जाए ताकि माहौलियात को नुकसान न पहुँचे। ये एक ऐसा बड़ा मसला है कि अगर ये चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हाउसिंग सोसाइटियाँ ज्यादा होंगी और ज़रूरी ज़मीन कम होती चली जाएगी। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हल के लिए ज़रूरी ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियों पर पाबंदी आयद करना होगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा मराहत देना होंगी। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़ कबीरवाला। दूसरी जानिब बरीकोट में तहसील इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और TMA का मुश्तरका ऑपरेशन। बरीकोट बाजार से तजावुजात को हटा दिया गया। रिपोर्ट करेंगे इकबाल खान। बरीकोट बाजार में तहसील इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और TMA का गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। बाजार में गैर कानूनी हथेली, पार्किंग और दुकानों से बाहर सामान को अपने कब्जे में लेकर फुटपाथ को हर किस्म रुकावटों से क्लियर कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बरीकोट मुनव्वर शाह का कहना था कि बरीकोट स्वात का गेटवे है, यहाँ किसी किस्म की गैर कानूनी तजावुजात और पार्किंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। सदर ट्रेड यूनियन बरीकोट मेराजुद्दीन ने इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि TMO को भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरअंजाम देनी चाहिए। आज जो बरीकोट बाजार में जो तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है, जिसमें हम असिस्टेंट कमिश्नर बरीकोट को खिराजी तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बाजार से तजावुजात का खात्मा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बरीकोट मुनव्वर शाह ने ताजर बरादरी से अपील करते हुए कहा कि बाजार में गैर कानूनी तजावुजात से गुरेज करे ताकि राहगीरों के लिए आमद रफ्त में आसानी हो और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ भी ताउन करे। इकबाल खान, सच न्यूज़, बरीकोट सवात। घेरकी में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सीवरेज का पानी जमा रहने से सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। शहरियों को आमदो रफ्त में परेशानी का भी सामना है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। डेरकी की रोड और रास्ते तबाह होने के बाद खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। सीवरेज का निजाम नाकिस होने की वजह से रोड पर पानी जमा होने के बाद शहर की मेन GT रोड टूट फूट का शिकार है, जिसे शहरियों को आमदरफत में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहराहों की तबाह हाली की वजह से और सीवरेज के गंदे जमा पानी के बाद हादसा भी रोज का मामूल बन गए हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ से ना कोई पानी निकालने का बंदोबस्त है, ना कोई पानी निकाल रहे हैं।
सफा इधर सत्यानाश हो रहा है, बदबूदार पानी, बीमारियां फैल रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं मोटरसाइकिलों पे वो उधर गिर रहे हैं सामने। इधर जो गाड़ियाँ रोज आती हैं बच्चों को लेकर, और काफ़ी इधर फैमिली हमारे देखा है कि गिर रही है, रोड के बीच से गुजरने का रास्ता ही नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मेन जीटी रोड की तबाहाली का नोटिस लेकर उसे जल्द तामीर कराया जाए ताकि अवाम को मजीद मुश्किलात से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद मुज्तबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डेर की। सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।